and we will see what are the attributes of critical thinking. Like many a times we will see that one of the main attributes of critical thinking is analysis. Now what is analysis? This is something which we have to understand. Now analysis compresses or say comprises of these things, as you can see on your screen. Asking thoughtful questions. Look, if you have to go for any kind of analysis, the first thing which is going to be very important is that you have to ask very thoughtful questions. You need to understand what are the questions which need to be put up for any kind of analysis, because when you are analyzing something, you need to have some questions in your mind so that you can seek the answers for that. Then you also need to collect some data, right? And when you are collecting data, so you need analysis. Now data analysis can be done in many ways. One of them is definitely the theoretical way. The other can be that it is in the form of numbers or something like that, and then you use either correlation, regression. Mostly mathematics people will understand, or even you can use some kind of softwares. Like there is a software called SPSS and so on, which people use a lot for data analysis. So those things are there. I'm just talking about different disciplines. It may not be applicable in philosophy as such, but for critical analysis or for critical thinking, these things are important. Similarly, you need to do some research as well. That means that whatever is present, and there are certain things which is there which is like missing, so you need to find those things as well. So you need to research as well. Then you need to interpret the data. Like if you have found, like okay, I have collected some data for like who likes fast food, suppose. Okay, so you have made a questionnaire, then you went to people and asked questions. You also took their age, you also took their say location where they stay, and this and that. So after that, when you collected the data, so you need to interpret. So interpretation can be like, okay, people in the age group of 18 to 25, because you have the data, so you have analysis. So once you have analyzed it, so you will find the interpretation that look, 18 to 25 people are more into fast food, or people who are urban, right? Those people who are staying in cities are more into fast food. So all these things are like called as interpretations. Then you also need to judge. These days people say that judgment is not a very good thing, or somebody was judging me and this and that. Not that kind of judgment. Judge means that you need to come out with a conclusion. Okay, that okay, that this age group people, or this kind of people, college going people, school going people, of something like that, the urban college going students, okay, they are more into fast foods or some specific kind of food or some specific kind of shopping. Like okay, they like hoodies more than say sweaters. Okay, so all these things are what we call as judging. Then you also may have to question the evidence. That means you have the data, but then you feel like that okay, the data was not collected properly, or somebody has forced the data, है ना? Sometimes what happens is कि हम किसी के पास गए एक क्वेश्चन लेके कि मेरा ये क्वेश्चन पढ़ दो, उसने जबरदस्ती कुछ कुछ भर दिया, तो आपका एनालिसिस ही गलत हो जाएगा, है ना? तो आपको ये भी देखना पड़ता है that whether the evidence which you have collected is the right evidence or not, or whether you the kind of data which people have provided you, whether they have hidden something, or whether they have just casually filled it, or whether they have actually filled it. So उसके लिए भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. Then you also need to go for a pattern recognition. That means that pattern क्या follow हो रहा है कि 18 से लेके जो है, या 16 से लेके जो है, या 15 से लेके जो है, लोगों को खूब फास्ट फूड खाने में मजा आ रहा है, या बचपन से खूब खाने में मजा आ रहा है, लेकिन 18 के बाद से धीरे धीरे उसका कम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम खा रहे हैं, और 25 तक जाते जाते जो है वो थोड़े से ओबीज हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो वो जो है छोड़ ही देते हैं, बोलते नहीं फास्ट फूड नहीं खाना है, मोटे हो रहे हैं, या कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो कुछ ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, दिस एंड दैट, तो पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम इट एट द एज ऑफ 25. तो वो पैटर्न्स को जो है रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. और एक और वर्ड आता है स्केप्टिक होना. ना स्केप्टिक होने का मतलब होता है डाउट करना, ठीक है ना? स्केप्टिसिज्म. ना डाउट करने का मतलब ये नहीं है कि डाउट करो कि नहीं ये गलत है, ये गलत है. डाउट करने का मतलब होता है यू हैव टू री एनालाइज, है ना? कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कोई डेटा एनालिसिस किया, लेकिन रिजल्ट जो है उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं, या रिजल्ट जो आ रहा है वो रियल लाइफ के साथ मैच नहीं कर रहा. यू नीड टू डाउट इट, और आपको जो है फिर से री एनालाइज करने की जरूरत पड़ सकती है. तो हैविंग दिस डाउटिंग कैरेक्टर इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. आप आगे चल के व्हेन यू विल बी स्टडीइंग वेस्टर्न फिलोसफी, तो उसमें देयर विल बी अ पर्सन कॉल्ड देकार्त.
though he's not a skeptic, but his method is of doubt. And later on, when you will go to a person called David Hume, so he's a skeptic, inductive skeptic है, उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी जब वो हमारी theories पढ़ेंगे. So they are very interesting theories, and it is a method of philosophy as well, to doubt and to find the truth. ऐसा नहीं कि to doubt, to keep doubting. It is like to doubt and find the truth. Okay, चलिए, ये तो हो गया एक part. Now let us come to another thing, that is communication. क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि सबसे पहले यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, है ना. जैसे कि सपोज आप किसी के पास डेटा कलेक्ट करने के लिए गए, आपने 10 सवाल पूछे, उसने आपको 20 चीजों के बारे में बताया, 50 चीजों के बारे में, आपको शांति से सुनना है, बिकॉज यू नीड टू कलेक्ट द डेटा, यू नीड टू हियर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट यू शुड बी अ वेरी एक्टिव लिसनिंग पर्सन, यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर. सेकेंड थिंग, असेसमेंट करना, है ना. एसेस करना कि जो जो चीजें कह रहा है उसके साथ साथ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस एंड दैट. तो यू नीड टू असेस दैट एज वेल कि वेदर दे आर ऑल फॉलिंग इन प्लेस और समथिंग इज लाइक की नॉट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. तो ये सारी चीजें. फिर कोलैबोरेट करना आना चाहिए. देखिए, द बेस्ट थिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इज टू कोलैबोरेट. आप अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते. तो सपोज मैंने आप लोग को एक काम दिया कि जाओ जाके ये काम करके आ जाओ, तो एक ही बच्चा चला गया, तो एक बच्चा कहाँ कहाँ जाएगा. रादर देन कि अगर तीनों लोगों ने अपना काम डिवाइड कर लिया, जैसे कि राइट नाउ इन दिस क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स, तो अगर तीनों ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया और फिर अपना अपना डेटा कलेक्ट करके लेकर आए, सब में बैठ कर उन्होंने एनालाइज किया, तो काम आपका कोलैबोरेटिव हो गया. लेकिन अगर एक ही पर्सन सारा का सारा काम करेगा तो काम लंबा भी चलेगा. और कोलैबोरेशन में एक चीज और होती है कि व्हेन डिफरेंट माइंड्स वर्क टुगेदर, न्यू थिंग्स कम आउट. जब सिंगल माइंड काम करता है तो उसको कभी कभार अपनी गलतियां नहीं दिखती, या समटाइम्स दे स्किप सर्टेन थिंग्स, है ना. आपके दिमाग से स्किप कर गए, तो यू कुड नॉट रिमेंबर और यू जस्ट फॉल्टर्ड एंड सो. तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं. इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एक्सप्लेन करना आना चाहिए किसी भी चीज को. हम क्यों कर रहे हैं, या हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, हम उसको कैसे समझेंगे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल फ्रेमवर्क में काम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभार क्या होता है कि लोग जो है बहुत सोशल नहीं होते, तो या फिर किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, तो जब प्रोफेशनली उनको काम करने के लिए दिया जाता है, तो जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को जो है लेकर आ जाते हैं. तो ऐसी जगहों पे जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड इंटरपर्सनल टच और रिलेशनशिप. उससे क्या होता है कि काम इजी पड़ता है या अच्छे से कर सकते हो. आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि इन योर फिलोसफी कोर्स, मेनी ऑफ कोर्सेज विल हैव प्रेजेंटेशंस एज असाइनमेंट्स, है ना. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो वही है दैट यू नीड टू प्रेजेंट वेल. टीम वर्क भी आप समझ ही सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोलैबोरेशन करना जरूरी होता है, वही टीम वर्क में भी वही पार्ट होता है. इस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन बोथ, जिस तरीके से आपको बोलना है उस तरीके से आपको लिखना भी आना चाहिए, दोनों ही चीजें. कुछ लोग अच्छे से लिख तो लेते हैं, है ना, पर लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब बोलते हैं. कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जब उनको लिखने के लिए दिया जाए तो इतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या इतनी सारी चीजें, मतलब वो पॉइंट्स में तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं ठीक से. तो ये दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही चीजें जो है आपको ध्यान रखनी. 2 चीजें हो गई, चलिए 2-3 चीजें और है वो भी देख लेते हैं. एक होता है क्रिएटिविटी. देखिए, कभी कभार क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है ना. क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट ओनली क्रिटिकल, इट इज ऑल्सो क्रिएटिव बाय नेचर. नाउ क्रिएटिव में क्या क्या पार्ट आता है. सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि यू नीड टू लीव द बॉक्स, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी कन्वेंशनल तरीका है किसी चीज को सोचने का या किसी चीज को समझने का, उसके परे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर कैन बी अदर वेज ऑफ थिंकिंग, तो उस चीज को जो है हार्बर करें. ठीक है. कॉन्सेप्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है, दैट हाउ समथिंग हैज टू बी कॉन्सेप्चुअलाइज. लाइक सपोज इफ आई आस्क यू पीपल कि भाई आपको जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, 1 डे सेमिनार, जिसमें आपको 5 लोगों को बुलाना है और उनके जो है आधे आधे घंटे के प्रेजेंटेशंस होंगे, और साथ में स्टूडेंट्स को भी जो है इन्फॉर्म करना है, सो दैट कि स्टूडेंट्स आके उनको सुने. और साथ में जो है आपको कुछ बैनर्स बनाने होंगे, तो कुछ डेकोरेशन का काम करना होगा, कुछ लोगों को कंपेयरिंग में रखना होगा, है ना. कुछ और
प्रोग्राम्स करने होंगे, लोगों के लिए रहने का अरेंजमेंट करना है, खाने का अरेंजमेंट करना है, उसके लिए बजट रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो आपको बताना है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअलाइज करना आना चाहिए, दैट हाउ वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग समथिंग और हाउ वी विल बी गोइंग फॉर समथिंग। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्यूरियोसिटी, एनी गुड रिसर्चर, थिंकर विल बी वेरी वेरी क्यूरियस। उसके दिमाग में हमेशा चलेगा कि क्या है जो मुझे नहीं पता, या यहाँ पे क्या हुआ था, वहां पे क्या हुआ था। बिकॉज यू नीड टू क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चनिंग कहते हैं, यू नीड टू क्वेश्चन, यू नीड टू बी क्यूरियस। इफ यू आर नॉट क्यूरियस यू विल नॉट फाइंड मोर क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो फिर जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर आपका जो वर्क है, आपका जो थिंकिंग है, वो इज ऑन द बैकड्रॉप, इट इज नॉट कमिंग ऑन द फ्रंट। तो उसके लिए क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, इमेजिन करना आना चाहिए। क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है इमेजिन करना, है ना। इमेजिनेशन जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और पीपल शुड बी वेरी क्रिएटिवली इमेजिनेटिव, क्योंकि जब तक आपका इमेजिनेशन का लेवल नहीं है तब तक आप किसी सिस्टम को बेटर नहीं कर सकते। तो इमेजिनेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से ड्रॉइंग कनेक्शंस, है ना, इसका और इसका और इसका कनेक्शन क्या है ना, ये चीज कैसे हुई, ये चीज किसके साथ कनेक्टेड है, ये चीज किसके साथ कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्शंस ढूंढ के निकालना। हम सारी चीजों के बारे में बताएंगे, अभी आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं। फिर इन्फर करना, जैसे लॉजिक में इन्फर करते हैं, प्रेमाइसिस से कंक्लूजन निकालना, है ना। प्रेडिक्ट करना जैसे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि साइंसेस का एक बहुत बड़ा काम होता है प्रेडिक्शन। जैसे आप वेदर प्रेडिक्शन देखते हो ना, कि भाई यहाँ पे अगर लो प्रेशर हुआ है, या यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो इसके कारण से रेन हो सकता है ना, या विंड हो सकता है। तो प्रेडिक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक थिंकिंग में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में, क्रिएटिव थिंकिंग में, या फिर आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें प्रेडिक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। What is synthesizing? Synthesizing का मतलब होता है कि when you can intermingle, और जिसको हम कहते हैं amalgamate two or more data together। जैसे आपके पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि 5 साल पहले कलेक्ट की गई थी, और आपने इस बार एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो कि उससे रिलेटेड है। तो आपको उन दोनों डेटा को जो है स्टडी करना आना चाहिए, सिंथेसाइज करना आना चाहिए टुगेदर। विजन भी वही चीज है जिसको हमने प्रेडिक्टिंग का, जैसे प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप आने वाले 1-2 दिन में या 5 दिन में या कुछ दिन। विजन का मतलब क्या होता है, दैट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है। जैसे अभी हमने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में अभी आप लोगों के लिए 4 क्लासरूम्स हैं, और जो है आप लोग आके पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि 4 क्लासरूम्स इज नॉट इनफ फॉर दी काइंड ऑफ से इस डिपार्टमेंट में अगर सपोज 3 कोर्सेज चल रहे हैं या 4 कोर्सेज चल रहे हैं, तो सबको एक क्लासरूम मिल गया है। चलो ठीक है, इस बार के लिए तो हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए जब अगला बैच आएगा तो उसको एक और क्लासरूम चाहिए होगा, क्योंकि आप तो पास आउट होंगे नहीं तब तक। एक बैच पास आउट हो जाएगा, लेकिन फिर 3 बैचेस और आ जाएंगे। तो आपने बोला कि सर 3 क्लासरूम्स मोर आर रिक्वायर्ड, या 4 classrooms more are required in the next 1 year, है ना। या in next 10 years when you are planning to have say more courses over here, you will require 10 more classrooms in next 10 years। तो इसको कहते हैं विजन, कि भाई आपको ये सोचना भी आना चाहिए कि हाउ टू एकोमोडेट इंफॉर्मेशन और हाउ टू एकोमोडेट पीपल एंड सो। तो इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसी तरीके से ओपन माइंडेडनेस, देखो एक चीज और जो कि आजकल बहुत ज्यादा मिसिंग हो रही है। लोग तो कहते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड है, बट एक्चुअली दे आर वेरी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब कोई गलत चीज नहीं है, दे आर कंजर्वेटिव इन द सेंस दैट दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, है ना। वो जो है जितना जानते हैं या जितनी चीजें समझते हैं वहीं तक सोच पा रहे हैं। ओपन माइंडेडनेस में क्या क्या, सबसे पहले डाइवर्स सिचुएशंस होते हैं और बहुत फेयरली देखना, मतलब कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अलग है तो उसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करने बैठ जाना कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग हाथ मिलाते हैं, यहाँ पे लोग पाँव छूते हैं। जैसे जो लोग हाथ मिलाते हैं सिर्फ और पाँव नहीं छूते, वो ये बोलते हैं कि पाँव छूना जो है ये क्या है, स्लेवरी की निशानी है ना, या फिर हायरार्की की निशानी। और जो लोग सिर्फ हाथ मिलाते हैं और पाँव नहीं छूते हैं, मतलब तो पाँव छूने वाले लोग उनको कहते हैं कि ये देखो ये कितने वो है, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से वैल्यू जजमेंट करने लग जाते हैं ना। तो इस तरीके से ह्यूमिलिटी का होना, या थोड़ा सा इंक्लूसिव सोच रखना, ऑब्जेक्टिविटी, सबसे इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिविटी रखना। आप सब्जेक्टिव स्टडीज मत करो, है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पीपल आर डिफाइंड बाय और डिराइव्ड बाय और आर,
जैसे मुझे कहना चाहिए कि दे 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 थिंक ऑफ समथिंग फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, दे कैन नॉट थिंक ऑफ थिंग्स फ्रॉम ए वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिवली सोचना जो है बहुत जरूरी होता है rather than किसी सब्जेक्टिविटी के थ्रू। और ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में इसके पहले भी बात करी थी। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ही होता है दैट यू नीड टू कॉन्सेप्चुअलाइज थिंग्स, है ना। तो ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, रिफ्लेक्शंस, ये सारी चीजें हर जगह पे आती रहती है, तो इसमें ज्यादा अपना कुछ है नहीं। अब आते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे। अब धीरे धीरे हम लॉजिक पे जाने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे ज़ारा बता रही थी दैट शी इज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसने पीसीएम पढ़ा हुआ है। तो पी और एम में तो भयंकर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सी में भी होती है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है। डेरिवेशंस होते हैं, दिस एंड दैट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। आपको हर एक डिटेल जो है प्रॉपरली निकालना है। जहां जहां डिटेलिंग की जरूरत है उनको डिटेल्स में निकालना है। सबसे पहले आपने कोई भी एक डिटेल मिस किया, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहली चीज। सेकेंड थिंग, जहां पर भी डाउट हो उसको क्लैरिफाई करो। यू नीड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी डाउट कि इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, या इसमें ये चीज अलाउड है क्या, या इसमें ये चीज गिवन है क्या, एंड सो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, है ना। दैट मीन्स दैट यू नीड टू डिसाइड। से आई डू नॉट नो वेदर यू पीपल हैव स्टडीड इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की अगर स्टडीज करोगे तो उसमें आप देखोगे दैट आपको कभी कभार बीच में मिसिंग डेटा होता है, उसको निकालना पड़ता है। कभी कभार पूरा डेटा दिया हुआ है तो आने वाले आगे के 2 डेटा क्या होंगे ये निकालना पड़ता है। वो भी पैटर्न रिकॉग्निशन ही होता है। डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यू ऑल्सो नीड टू बी ग्राउंडेड ऑन योर थ्योरी। ऐसा नहीं कि आपका आपसे बन नहीं रहा है या ये कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने बोला कि नहीं ये थ्योरी बेकार है, ये वाला सिस्टम बेकार है, नहीं हम इसमें नहीं करेंगे, है ना। कभी कभार पीपल लूज फेथ इन देयर सिस्टम। ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि देयर इज अ डिफिकल्ट पजल। प्रॉब्लम नहीं है, वो पजल ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे जो लोग सुडोकू करते हैं या जो लोग स्क्रैम्बल्स करते हैं या और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसमें कभी कभार जो है वो लोग जो है बहुत फंस जाते हैं। तो जब फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम इस सिस्टम से नहीं यूज करेंगे, इस चीज को नहीं यूज करेंगे, एंड दिस एंड दैट, है ना। तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। यू शुड हैव फेथ। इस तरीके से पैटर्न, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला, पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज अगर जरूरत पड़े तो यू कैन इनोवेट। दैट मीन्स कि आपको बुक में दिया गया है कि इस तरीके से करना है, ठीक है ना। आपने उसको पढ़ा, आपने वो तरीका सीख लिया, लेकिन फिर आपने देखा कि इसको अगर ऐसे करें तो भी सही है, ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं इनोवेशन। दैट यू हैव अ न्यू वे, और उसके थ्रू जो है आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कुछ और स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हमने कल जब थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बताया था तो डिडक्टिव रीजनिंग पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे। हम इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक के बारे में भी एक बार बात कर लेंगे, तो आपको बताएंगे। दे आर बेसिकली द मेन फील्ड्स ऑफ लॉजिक, जिसपे कि फिलोसफी या फिलोसॉफिकल लॉजिक जब स्टडी करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग पे सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि प्रेमाइसिस के ट्रू होने पे कंक्लूजन का ट्रू होना जरूरी होता है, आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। और इंडक्टिव रीजनिंग में जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत प्रोबेबल होता है कि कंक्लूजन भी ट्रू है। तो वो क्या होती है, सो ऑन, आई विल टेक सेपरेट लेक्चर ऑन दैट। सिमिलरली कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब कि जैसे कि कोई रूल फॉलो करना है या कोई सेट ऑफ वो चीजें फॉलो करनी है, तो उसको भी जो है आपको फॉलो करना आना चाहिए। और नोटिसिंग आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ डेटा होता है जो कि आपके डेटा को खराब कर रहा हो, यानी कि दैट दिस इफ आई इंक्लूड दिस डेटा देन आई कैन नॉट स्टडी, या इफ आई इंक्लूड दिस ऑब्जर्वेशन देन आई कैन नॉट स्टडी। कुछ कुछ आउटलायर्स होते हैं। जैसे एक क्लास में हम सपोज एवरेज हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमने सारे बच्चों की हाइट्स को जो है वो किया, मेजर किया। अब एवरेज हाइट में ऐसा हो रहा है कि एक लड़का जो है बहुत लंबा है, तो उसके कारण से जो है डेटा क्लास का जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। या एक बच्चा जो बहुत शॉर्ट हाइट का है, उसके कारण से जो है हमारे क्लास की डेटा जो है बिगड़ रही है। तो वो होते हैं आउटलायर्स कि क्लास की एवरेज हाइट 5 फीट ही है या 5 फीट 2 इंचेस ही है, लेकिन इसमें एक क्लास में बच्चा है जो कि यानी है ना, ही इज लाइक हैविंग अ प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, तो उसकी हाइट जो है 4 फीट के आसपास।
या एक बच्चा है जो कि बहुत स्पोर्टी है, या उसके पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर है एंड दिस एंड दैट है, उसकी हाइट करीब करीब 6 फीट 8 इंचेस है, ठीक है ना। तो उसके कारण से जो है पूरा क्लास का डेटा खराब हो रहा है ना, बिगड़ रहा है। तो उनको कहते हैं आउटलायर्स, तो उनको छोड़ सकते हो आप, है ना। नोटिस करना जरूरी है उस चीज को। इसी तरीके से एडेप्टेबिलिटी, है ना, जैसे कि अडेप्ट करना आना चाहिए कि एक सिचुएशन नहीं आई है तो उसमें कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे हम अपने सिस्टम को जो है चेंज करेंगे सो दैट कि हम जो है उसमें जैसे मुझे कहना चाहिए कि वी कैन अडेप्ट टू द सिस्टम। इस तरीके से इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, वही जैसे मैंने इससे पहले भी बात की थी, दैट बी यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इमोशंस ऑफ अ पर्सन, है ना। कि कभी कभार किसी का इमोशनल आउटबर्स्ट था तो उसके कारण से ऐसा किया है, ऐसा हुआ है एंड सो ऑन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीपल आर नॉट मैकेनिकल बाई नेचर और दे आर नॉट आर्टिफिशियल, दे आर इमोशनल। तो उनके इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं, और आपको भी जो है किसी को डील करते टाइम काफी सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स अ पर्सन रादर देन सो डैम मैकेनिकल कि नहीं अच्छा ये है ये है ये है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सवाल होते हैं जो कि बहुत पर्सनल होते हैं, तो हो सकता है कि आपको उनको अलग से लेके जाके बैठा के बात करना पड़े, सबके सामने नहीं पूछ सकते। या कभी कभार ऐसा होता है कि if you have to ask certain questions you need to make the person comfortable before you can ask the questions, तो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल करना जरूरी है एंड सो ऑन। तो इस तरीके की चीजें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, दैट यू रियली नीड टू थिंक अ लॉट, क्या है भाई प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, एंड समथिंग लाइक दैट। वो जो एनालिसिस जिसको हम कहते हैं उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और बहुत मजेदार वर्ड होता है। जैसे कि कभी कभार ये, जैसे एक बार एक ब्रेन स्टॉर्मिंग से ये पता चला, some professors set together for a study, तो उन्होंने एक चीज पता लगा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर से जो है कभी भी इवैल्यूएशन अच्छी नहीं। सबसे अच्छी इवैल्यूएशन तब होती है जब कि एक मॉडरेट टाइप का पेपर आता है जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा डेटा निकाला, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर सोचा, फिर पता लगाया, तो ये देखा क्या कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स में भी बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं निकल पाते हैं कभी कभार, और कभी कभार नहीं, ज्यादातर टाइम पे। और इजी क्वेश्चन पेपर तो हर कोई सॉल्व कर देता है, तो उससे भी जो है आपको बेस्ट का पता नहीं चलता है। तो बेस्ट निकालने के लिए आपको मॉडरेटली पेपर डालना चाहिए जिसमें कि इजी क्वेश्चंस भी हो, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हो और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो, तो जो है चेकिंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है। तो ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग का नतीजा होता है। इस तरीके से आपको रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करना आना भी चाहिए या आपको स्टडी को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब यही होता है दैट यू ऑप्टिमाइज इट टू अ लेवल जिससे कि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे सके, है ना। कभी कभार ऐसा हो रहा है कि आपका डेटा 4.8 पे ही फंस गया है, लेकिन अगर 5 आ जाता तो सही। तो आप देखो कि भाई अगर हमारे पास थोड़े से और ऑब्जर्वेशन होता तो 5 ही हो जाता, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं ले पाए तो आपने बोला कि ठीक है दिस इज राउंडेड ऑफ टू 5, दैट इज लाइक एन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है दैट इट इज मोर प्रेजेंट, है ना, इट इज मोर एक्सेप्टेड, इट इज मोर एक्सेसिबल। तो वो चीज भी जो है आपको करना पड़ता है। रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है। रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है कि कभी कभार जो है कोई डेटा किसी जगह पे ठीक नहीं है या कोई एनालिसिस किसी जगह पे ठीक नहीं है, तो उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि नहीं इसको पहले करेंगे फिर इसको बाद में करेंगे, इससे जो है हमारी स्टडी सही रहेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इंटीग्रेट करना है 2 3 4 डेटा को जो है इंटीग्रेट करना है एक साथ में, और उससे जो है हमने एक फर्दर स्टडी करी, है ना, कि सिर्फ यंग लोग फूड खाना पसंद, मतलब कि सिर्फ बाहर निकलते तो क्या करते सबसे पहले हमने देखा कि ये जाके सबसे पहले चाउमीन खाते हैं या फिर इन्होंने कुछ फास्ट फूड खाना होता है, फिर ये जाके जो है कुछ और काम करते हैं, फिर ये घूमना फिरना पसंद करते हैं, बाइक्स में घूमना फिरना पसंद करते हैं एंड सो ऑन। तो आपको बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करना पड़ा, है ना, तो वो करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी जगह पे क्वेश्चन, लॉजिक में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम सबसे पहले यहाँ से ये निकालेंगे, फिर इससे हम इसको इक्वेट कर देंगे, फिर इसमें से जो है हमारा ये डेरिवेशन। ये स्ट्रैटेजी, जब तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है माइंड में, तब तक आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलवेज रिक्वायर्स ए काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है ना। कभी कभार जैसे देखिए, अब क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट ओनली द परक्यू ऑफ फिलोसफी, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में यूज किया जाता है। तो कभी कभार प्रोजेक्ट्स होते हैं,
प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो उसको भी जो है करना पड़ता है। और अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हमको कोई जरूरत नहीं है। ये भी देखो, ये भी जो है, ये भी अलग अलग, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। कॉजल रिलेशनशिप्स देखा जाता है कि पी और क्यू में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्या। इसका केस एनालिसिस आजकल जो है, जितना मैनेजमेंट की स्टडीज है उसमें केस एनालिसिस बहुत किया जाता है ना। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ केस एनालिसिस। इनफैक्ट व्हेन यू विल डू कोर्सेज ऑन एथिक्स एंड ऑल, तो उसमें भी आपको काफी सारे केस एनालिसिस देंगे। तो केसेस हुए हैं, उसकी एनालिसिस करो, फिर उसमें से जो है आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो करना पड़ता है। डायग्नोस्टिक्स है ना, मेडिकल साइंसेस में डायग्नोस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डायग्नोसिस करने के लिए तो वो इतने सारे टेस्ट करवाते हैं, फिर उससे फैमिली हिस्ट्री से और टेस्ट से और आगे पीछे क्या हुआ है, ये जितने सारे सवाल पूछते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, सो दैट कि वी कैन फाइंड अ क्योर ऑफ योर इलनेस और अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। शॉर्ट एनालिसिस, ये भी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसको एनालिसिस करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला, बिजनेस मैनेजमेंट इनमें होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा मैनेजमेंट, ये भी जो है मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, बट अगेन दे आर पार्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, दे आर पार्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। तो ये जो है मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें कि हम क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकली किसी चीज को इवेल्युएट करना, एनालाइज करना या उसको समझना में हम ये सारे फैक्टर्स को यूज करते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम फॉर श्योर। तो दीज आर लाइक certain ways in which people study or people try to come out with their problems and solutions. चलिए, for today we will just keep the class up to this.